Hello, bachcho. So today we are going to start with the chapter number 10, light, reflection and refraction, and we are on the part of refraction now. We have already covered the part of reflection. You can check it out in our past videos. What do you understand by reflection? Reflection by a plane mirror, reflection by a convex, concave mirror, the mirror formula 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f, and the magnification, like how magnified is the image is forming in different cases of concave and convex mirror. We have already understood that part. Check out all the videos. Now today we are going to understand the second part of this chapter number 10. What is that? It is refraction. So what is refraction basically? Let me write down the definition for you. The change of direction of light passing from one transparent medium to another is known as refraction. So what is happening here? When a light enters from one medium to another, so first medium could be air, first medium could be vacuum. When a light enters from one medium to another, there must be a change in its path. So ये this is medium 1, this is medium 2. अगर ये आपका first medium air है और अगर air light enter कर रहा है water में, so there is a change in medium, and when there is a change in medium, there is a change in direction of light, and this is called refraction. अब ये होता क्यों है ना? Why is this happening? So why refraction is happening? We have to understand this also. Why refraction is happening? So what is happening here? Due to different optical density of the medium. What am I saying? Optical density. For example, air. The density of air is quite less than the water. Okay, here we are talking about optical density also. So optical density we are able to see in air very carefully, but in water we cannot see it very thoroughly. So we can say optical density. तो air में हम अच्छे से देख सकते हैं, okay, क्योंकि वहाँ पे particles दूर दूर है. वहीं हम water की बात करते हैं तो particles are combined together H2O molecules, इसलिए वहाँ पे हमें देख पाना मुश्किल होता है. So what is the cause of refraction is the speed of light. The speed of light changes when light enters from one medium to another medium. Okay, from one medium to another medium, then the speed of light changes, and that's why the refraction is happening. So if ऐसा क्वेश्चन आता है कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है, रिफ्रैक्शन का मेन कोज है जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, ड्यू टू चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटी में चेंज होने की वजह से स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है. ओके, तो आपको एक बात याद रखनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम को क्या कंसिडर किया जाता है? ये फिक्स वैल्यू है बच्चा. जब सन से हमारे पास लाइट आ रही है तो वो वैक्यूम से आती है और उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, और यू हैव टू कंसिडर दैट वैल्यू and remember this value, that is called 3 into 10 raised to the power 8 meter per second, or we can call it 3 lakh kilometer also in kilometer terms, but here we are talking about meter per second. So 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. So जैसे ही लाइट रे आई, यहाँ स्ट्राइक करी, अगर ये एयर होगा तो लाइट की स्पीड होगी 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकंड. जैसे ही वो स्ट्राइक करके अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी वाटर में, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी. ओके, स्पीड विल बिकम लेस, क्योंकि वाटर में पार्टिकल्स ज़्यादा है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी.
वाटर में पार्टिकल्स आर कंबाइंड टुगेदर मोस्टली, सो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अब ये फिनोमिनास हमें देखने को कहाँ मिलते हैं, कहाँ आपको डेली लाइफ में रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, तो चलिए बात करते हैं उस पर। तो जो फिनोमिनाज है हमारे आसपास हमारी डेली लाइफ में, सम एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो क्योंकि ये काफ़ी आपको आसपास आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगे। सो अगर आपने कभी किसी रिवर और स्विमिंग पूल में जंप किया होगा या स्विमिंग किया होगा तो आपको पता होगा कि जो स्विमिंग पूल का जो बेस होता है, बॉटम होता है, वो स्लाइटली हाई लगता है, अपीयर नज़र आता है, हमें उसकी डेप्थ कम नज़र आती है। लेकिन जैसे ही हम जंप करते हैं क्या होता है, जंप करते ही हमें पता लगता है ओ ये तो ज़्यादा गहरा है। ठीक है, तो व्हाट इज दैट, दी बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल। स्विमिंग, ये आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, स्विमिंग पूल, और आप अगर कॉइन को भी अगर डालोगे तो वो भी आपको दिखेगा, वाटर में अगर कॉइन पुट करोगे तो कॉइन हायर। ठीक है, इसमें सेकंड हो सकता है अगर आपने कभी किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डाला है तो वो बिगर सा नज़र आता है। जैसे अगर मैं लेमन को प्लेस कर देता हूँ, लेमन प्लेस इन अ ग्लास टम्बलर, ग्लास टम्बलर मतलब ग्लास का एक बर्तन में, अपीयर्स बिगर, तो वो आपको बड़ा नज़र आएगा। कर सकते हो आप, डेली लाइफ में ये यूज़ करते हो, आप चेक कर सकते हो। ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये सब भी रिफ्रैक्शन की फिनोमिना है, मगर उसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर आप ग्लास स्लैब, आपकी नोटबुक लीजिए, नोटबुक के ऊपर एक ग्लास का स्लैब रख दीजिए, ग्लास रख दीजिए, ग्लास का स्लैब, तो आप देखोगे कि जो आपके लेटर्स है उस नोटबुक पे वो हल्के से रेज्ड नजर आएंगे। तो लेटर्स, क्या लिख रहा हूं मैं, लेटर्स ऑफ अ बुक appears raised when, raised मतलब उठ जाना, when seen through a glass slab, seen through a glass slab। ठीक है, और बताइए, एक पेंसिल को आप डिप कीजिए पानी में तो आप देखोगे कि पेंसिल का जो पार्ट है वो आपको बेंड नजर आएगा। करके देखिए, अपने ग्लास लीजिए, ग्लास में पानी भरिए, उसमें अपनी पेंसिल को डिप करिए, है ना, और आप देखोगे जो उसका हाफ ऐसा लगेगा आपको ब्रेक डाउन हो चुका है। तो अ पेंसिल पार्शियली इमर्ज, पूरी मत डुबोना, सिर्फ पार्शियली डुबोना। ओके, इमर्ज इन वाटर अपीयर्स, ये वही पॉइंट लिख रहा हूं मैं, अ पेंसिल पार्शियली अपीयर्स, इमर्ज इन वाटर पार्शियली अपीयर्स टू बी बेंड एट द सरफेस, आपको बेंड नजर आएगा, वो बेंट हो जाएगा हल्का सा एट द सरफेस ऑफ वाटर एंड एयर। ठीक है, क्योंकि आपने वाटर की सरफेस और एयर की सरफेस पे वो बेंड नजर आएगा, क्योंकि वहाँ पे लाइट का क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन, वो असल में बेंड नहीं हुई है, सिर्फ वो आपको ऐसा नजर आएगा। गॉट इट और नॉट, कोई डाउट है? डाउट है, नहीं होना चाहिए। तो 4 एग्जाम्पल आपको क्लियर हो चुके होंगे, आई होप सो। नाउ वी विल गो अहेड विद दैट। सो अब इसको ग्लास स्लैब में हम देखते हैं कि ये जो रिफ्रैक्शन होता है ना हमारा, ये ग्लास स्लैब में दिखता कैसा है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो ग्लास स्लैब क्या है कि जैसे नंबर ऑफ एक लेयर से एक ग्लास स्लैब मिलके बना है, तो मैं बना देता हूँ आपका। ठीक है, सपोज एक स्क्वायर शेप आपको बनाना है, ग्लास स्लैब को ऐसे रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप बना लो ऐसा, इसको नेम दे दो ABCD, ये आपका एक ग्लास का स्लैब हो गया। ठीक है, अब हम लाइट को उसमें एंटर कराएंगे। ओके, सो लाइट को हम एंटर कराते हैं, येलो कलर की लाइट होनी चाहिए ना, अच्छा लगेगा। तो येलो कलर की हमने लाइट ले ली है, लाइट एंटर करेगी। ठीक है, ये लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करी, ये एयर मीडियम था, ये ग्लास है आपका बीच में। ठीक है, और फिर से यहाँ पे एयर मीडियम है। तो जैसे ही वो एंटर करेगी वो यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, और यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है नॉर्मल। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की हम बात करेंगे इसके बाद, डोंट वरी अबाउट दैट।
अब क्या होगा, वो हल्की सी बेंड हो जाती है लाइट रे, उसका डायरेक्शन चेंज होने की वजह से बेंड हो जाती है लाइट, इस तरह से चलेगी। अब यहाँ पे जब स्ट्राइक करेगी तो फिर से आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा इस पे। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर लाइन टू द सरफेस, फिर वो ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। लाइट का जो ओरिजिनल पाथ था, लाइट को जाना था इस डायरेक्शन में, यू कैन सी लाइट जाने वाली थी इस डायरेक्शन में, लेकिन वो एक्चुअली यहां से पास हो रही है इस जगह में, ठीक है। तो यू कैन सी देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट in the path of light, and this parallel distance is known as lateral displacement। क्या नेम दिया गया था इसे, lateral displacement, कि जो लाइट को जाना था हालांकि गई उसी डायरेक्शन में, यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ द लाइट इज सेम, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट हो गई है, लेटरल शिफ्ट भी बोल सकते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट। तो लाइट का शिफ्टिंग हो गया है, अगर मैं यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, ये जो शिफ्ट हो गया लाइट का, जाना था इसको इस पाथ पे, लेकिन ड्यू टू ग्लास स्लैब उसमें शिफ्ट आ गया है, उसको कहते हैं लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ये होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि हम आगे डिटेल में समझेंगे, इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब की वजह से होता है ना। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं आपको थोड़ा सा अभी बताता हूं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स है कि लाइट की स्पीड में कितना चेंज आ गया है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब लाइट की स्पीड एयर से जब ग्लास में एंटर करा तो उसमें कितना चेंज आया है, किस रेशियो में चेंज आया है, दैट इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चेंज तो आएगा, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका जो ये लेटरल शिफ्ट है। और दूसरा होगा थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, मतलब आपका जो ग्लास का स्लैब है ना, वो कितना थिक बनाया गया है, थिक कितना है वो। अच्छा, ये 3D में अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ग्लास स्लैब ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है, ये ओके, ये मैंने आपको बनाया था बस ABCD, ये पॉइंट्स बनाए थे। तो लाइट जब इनमें एंटर करेगी तो वो ऐसे घूम के ऐसे चली जाएगी, ठीक है, इस तरह से था वो। अब नेक्स्ट इसमें केसेस पे जाते हैं, एयर और ग्लास में आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर मैं आपको आइडेंटिफाई करता हूँ एंगल्स को क्या बोला जाता है, तो एंगल्स भी समझ लीजिए, एंगल्स का अलग अलग नेम होगा, तो मैं आपको नेम देता हूँ। इस एंगल को, जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, उसको हमेशा कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड इट इज डिनोटेड बाय आई। तो ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे ये जो एंगल है, जो रिफ्रैक्ट होने के बाद, लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद जो एंगल बना रहा है, इसको स्मॉल r से डिनोट किया जाएगा, स्मॉल r से। और स्मॉल r मीन्स होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। फिर से वापस एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये अगर इसको I1 नेम देंगे तो हम इसको फिर I2 नेम दे देंगे, यहाँ पे I2 और इसको R2। तो ये R1 क्योंकि 2 बार हो रहा है ना, 2 बार हो रहा है इसलिए। अब इसी के बेसिस पे हम थोड़ा सा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट पार्ट समझ लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी 2 टाइप के हैं, जल्दी से हम लिख लेते हैं फिर इसको समझेंगे डिटेल में। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट ये है कि द इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये फर्स्ट हो गया आपका नॉर्मल टू द सरफेस, पूरा ही लिख देता हूँ, नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम लाई ऑन सेम प्लेन, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड होता है स्नेल्स लॉ, उसको हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही।